Good morning, all of you. Now I am going to exercise 9.1 height and distance. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12. From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine height of the tower. Determine height of the tower. तो क्या इस क्वेश्चन को आप समझ लिए? कैसा डायग्राम बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टावर है, केबल टावर, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन top of the cable tower is 60 degree and angle of depression is foot is 45 degree. Determine the height of tower. देखिए इसको सुनिए. क्वेश्चन नंबर 12. देखिए यहां पर एक हम बना दिए बिल्डिंग, इसका नाम दे दिए AB. AB इज ए बिल्डिंग एंड एक केबल टावर है C और D. टावर भी परपेंडिकुलर है, बिल्डिंग भी परपेंडिकुलर है. ABCD is a cable tower. It is tower और ये बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग. Now angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. And this angle is 60 degree. It is angle of elevation. And its foot at the point C and angle of depression at its foot is, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है दिया हुआ? 45 डिग्री का. 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर. हाइट ऑफ द टावर मान लिए h मीटर. नाउ AB is equal to 7, तो C is also 7 meter. This length is equal to this length. Now DE is equal to h minus 7. Length of DE capital H minus 7 meter. Now in triangle AED में, in triangle AED, thus opposite side is perpendicular और this side is base. तो sin 60 tan 60 perpendicular by base. Tan 60 degree is equal to perpendicular by base. Tan 60 root 3 is equal to h minus 7 by x. By cross multiplication, root 3x is equal to h minus 7. So x is equal to h minus 7 by root 3. This is equation 1. Now in triangle AEC में या ACE में, in triangle ACE tan 45 degree perpendicular and is 7 by base x. 7 by x. Tan 45 degree is equal to 1. By cross multiplication, x is equal to 7. This is equation 2. Now putting the value of x in equation 1, x is equal to 7. Putting the values of x in equation 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 and 7 is equal to
h minus 7 by root 3 by cross multiplication 7 root 3 is equal to h minus 7, so h is equal to 7 root 3 plus 7 आणि h is equal to 7 कॉमन ले लो, root 3 plus 1. h is the height of cable tower. h is equal to height of cable tower, which is h 7 into root 3 plus 1. Determine the height of tower. Height of tower is 7 into root 3 plus 1 meter. Okay? Any problem? इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है? हेलो, अमृत गौतम, हेलो अमृत, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम कोई इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन में कि हम आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 14 जिसका डायग्राम बना हुआ है 9.3 से देखो. हरिराम, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा पढ़ो तो. क्वेश्चन नंबर 14. देखिए इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है. इसका डायग्राम आपको ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्वेश्चन तो और इजी हो गया. जब डायग्राम आपका बना दिया तो क्वेश्चन और इजी आ गया. वो बता देंगे, मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है ना. हाइट एंड डिस्टेंस का मार्किंग स्कीम में भेजा हुआ है क्वेश्चन. 6 मार्क्स का होगा. 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in horizontal line at the height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, angle of elevation reduced 30 degree. So find the distance traveled by the balloon during the interval. यानी एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है. तो देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और यहाँ पर एक बैलून है और यही बैलून मूव करके कुछ डिस्टेंस पर आ गया. कितना डिस्टेंस आया यही फाइंड करना. फिर बैलून यहाँ आ गया, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज 30 डिग्री आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस फाइंड करना है. यहाँ मान लो ए है, बी, सी, डी और ई. डी और ई आपका बैलून है. डी और ई क्या है? बैलून है. और हाइट बैलून का 88.2 मीटर. 88.2 मीटर. यहाँ भी हाइट क्या होगा? 88.2 मीटर. ए बी द लेंथ x और BC इज द लेंथ ऑफ y. तो ये y, ये भी बैलून का लेंथ क्या होगा? y होगा. यही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है.
तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 परपेंडिकुलर आणि 88.2 by base is x, tan 60 root 3 by 1, 88.2 by x, by cross multiplication root 3x 88.2, x is equal to 88.2 by root 3. This is equation 1. Now in triangle BAC में, इन ट्रायंगल BAC क्या सबको बोर्ड क्लियर नहीं है? एट्टी-एट, देखिए फिर से, इन ट्रायंगल BAC tan 30 degree is equal to perpendicular by base, base is x plus y, by cross multiplication x plus y is equal to 88.2 into root 3. So y is equal to 88.2 root 3 minus x. Now putting the value of x from equation 1, from equation 1 से, equation 1 क्या है? x is equal to 88.2 by root 3 है, ठीक है? Now LCM of 1 and root 3, root 3 होगा LCM 1 से डिवाइड के रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 आणि 88.2 इंटू 3 माइनस इस रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 88.2, इस दोनों टर्म से 88.2 ले लो कॉमन, तो क्या बच गया? 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में रूट 3, और इसको भी रेशनलाइज कर दो आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो रूट 3 और डिनोमिनेटर में 88.2 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू रूट 3. अब रूट 3 ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 और 8 28, 9 3 जा 27, रिमाइंडर 1 0.4 3 जा 12, and now 29.4 into 2 root 3, इस दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 3 4 जा 12, कितना आएगा? 4 2 जा 8, इस दोनों का प्रोडक्ट ये नहीं आ रहा है, इसलिए 3 से लगाया, 3 2 जा 6, 2 आया, 1 आया, 0.4, तो इस दोनों का प्रोडक्ट तो ये होना चाहिए ना, 4 2 जा 8, 58.8 रूट 3 मीटर, 58.8 रूट 3 मीटर इसका सॉल्यूशन आया। आप इसको तो जैसा कैलकुलेशन करोगे, अब रूट 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये आएगा, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना? रूट 3 का वैल्यू और पुट करके इसको सिंप्लीफाई हम, हाँ चलिए ठीक है, बहुत करेंगे तो रूट 3 का वैल्यू पुट कर दो, रूट 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 58.8
ठीक है। हाँ, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, बहुत करोगे 58.8√3 का वैल्यू 1.732 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी हम इसको रहने दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन आगे तक जितना करो उतना ठीक है। अब है 15 और 16 में कोई एक क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, कौन बता रहे हैं? 15 या 16? जल्दी पूछो। 15 पढ़िए, क्वेश्चन 15। चलिए 16 पढ़िए। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़े। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in a straight line with the arc complement। पहला डिस्टेंस 4 मीटर पर है और दूसरा डिस्टेंस 9 मीटर पर है। कहां से? एक टावर से। उसके बाद फाइंड द हाइट या प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। बहुत आता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हम यहां पर एक टावर बना दिए और इस टावर के बेस में 2 पॉइंट ले लो, फर्स्ट पॉइंट बेस और सेकेंड पॉइंट बेस। ये आपका पॉइंट है, टावर दिया हुआ है, नाम ए बी इज ए टावर, 2 पॉइंट सी एंड डी, विच इज डिस्टेंस ऑफ, पहला डिस्टेंस है 4 मीटर और सेकेंड डिस्टेंस इज 9 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। फर्स्ट डिस्टेंस इज 4 मीटर और सेकेंड डिस्टेंस इज 9 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन इज कंप्लीमेंट्री। अब देखिए, यही आपका लेंथ है, कंप्लीमेंट्री है दिस इट इज दैट। इस दोनों एंगल जो आपका बना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? डिफाइन कंप्लीमेंट्री एंगल, बताओ। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल को हम थीटा मान ले, जो सी पॉइंट पर बनाए हैं एंगल, अगर वो थीटा है, क्या है? सी पॉइंट पर एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा? सेकेंड एंगल 90 माइनस थीटा होगा। हाँ, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी दो एंगल का सम क्या हो? 90 हो, उसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो आप प्रूव कीजिए हाइट ऑफ द टावर h इक्वल टू 6 मीटर। ये हमको प्रूव करना है,
ये क्या करना है, प्रूव करना। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। कैसे प्रूव करेंगे? तो पहला ट्रेंगल लो, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी में अगर आप ये थीटा एंगल लेते हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर h माने हैं, ये आपका h है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है? इस बेस का दिया हुआ है 4 लेंथ, बेस इज इक्वल टू 4, इसको 1 बना करके छोड़ दीजिए। और सेकेंड, इन ट्रेंगल बी डी ए में, या ए बी डी ले लो, इन ट्रेंगल ए बी डी में यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और डी पॉइंट है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h अब बेस, ये टोटल लेंथ क्या है, 9 दिया हुआ है, यानी h by 9। We know that tan 90 minus theta is equal to cot theta, यानी cot theta is equal to h by 9। It is equation 2। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको h इक्वल टू प्रूव करना है, प्रूव दैट h इक्वल टू 6 मीटर। बोर्ड क्लियर नहीं है? हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा h बाय 4 है और यहाँ cot थीटा इक्वल टू 8 बाय 9 है। दो इक्वेशन आपके पास है और इस दोनों से h इक्वल टू 6 प्रूव करना है। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? पढ़े हो फर्स्ट टर्म में? 1 होता है। क्यों 1 होता है? तो देखो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, दोनों में से कट करके क्या हो गया, 1 हो गया है। तो tan, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। जैसे इसका LHS है tan थीटा और यहाँ है cot थीटा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा लिख दिए। और दोनों का RHS देखो, h बाय 4 और h बाय 9, यानी h बाय 4 इंटू h बाय 9, ऐसा लिख सकते हो। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों का LHS में है tan थीटा और cot थीटा, दोनों का RHS है h बाय 4 और दूसरे में h बाय 9, इधर भी प्रोडक्ट इधर भी प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। We know that tan theta into cot theta is equal to 1 is equal to h into h square or 9 into 4 36 by cross multiplication h square is equal to 36, तो h is equal to 6 मीटर, यानी आपको प्रूफ हो गया हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, इज योर आंसर। ठीक है, इसको नोट करना है, कर लो जल्दी। तो एक और बता ही देते हैं, अभी टाइम है 5 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बता देते हैं। 15 पढ़ोगे बता देगी, क्वेश्चन पढ़ो 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए।
हेलो, क्वेश्चन नंबर 15. A state highway leads to foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression is 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, after 6 seconds, angle of depression of the car found to be 60 degree. Found to be 60 degree. So find the time taken by the car to reach of the foot of the tower of the foot of the tower. तो इसका डायग्राम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का. हम यहाँ पर एक केबल टावर बना दिए और फर्स्ट पॉइंट ये दिए और सेकेंड पॉइंट आपका ये दिए, जिसका नेम दे दो ए बी परपेंडिकुलर, सी और डी. पहले आपका दिस जैसे नजदीक जाने, दिस एंगल इज 30 डिग्री और दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो कार पहले था पॉइंट डी पर. आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड के बाद कार आ गया सी पॉइंट पर और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री. अब इसी स्पीड से कार को बी पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगेगा? जैसे इसको यहां से आने में 6 सेकेंड लगा, तो पॉइंट सी से बी आने में कितना टाइम लगेगा? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर. So now this is the length of x meter, or BC is the length of x meter, और CD is the length of y meter. CD का लेंथ को बना दिए y meter. Now इन ट्रायंगल ACB में इसके हाइट को h बना दो. हाइट क्या बना दिए? h. तो इन ट्रायंगल ACB tan 60 perpendicular by base. Tan 60 is equal to root 3 is equal to h by x by cross multiplication. h is equal to root 3x. इसको बना दो इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD tan 30 degree is equal to perpendicular h by base x plus y. Base is x plus y. यहाँ पर tan 30 1 by root 3 is equal to h by x plus y. x plus y is equal to root 3h. हमको फाइंड करना है x का वैल्यू, है ना? तो देखो अगर h इक्वल टू तुम पुट कर दो रूट 3x इसमें, h इक्वल टू जैसे x प्लस वाई, आप पुट कर दिए h का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? तो रूट 3x फ्रॉम 1 से लिख भी देना, फ्रॉम 1 से. ठीक है. अब देखिए यहां पर यहाँ रूट 3 3x, तो y इक्वल टू 3x माइनस x, तो 2x आया. y इक्वल टू 2x, ये जो y है 2x का इक्वल आया. तो 2x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा बताओ? 2x डिस्टेंस कवर इन
6 सेकेंड, तो 1x डिस्टेंस कवर इन 3 सेकेंड, 2x डिस्टेंस कवर in 6 सेकेंड, तो 1x डिस्टेंस कवर इन 6/2 आणि 3 सेकेंड, आणि दिस इज आंसर ऑफ 3 सेकेंड आपका आंसर है। ये आपका आंसर, ये लास्ट में यूनिटरी मेथड का हम यहाँ पर यूज कर दें। ओके।